Students, we were discussing about the LPG policy, that is liberalization, privatization, and globalization, and we discussed about the liberalization, but one point is missing there, and that is trade and investment policy reforms that we are going to discuss today. So we have discussed the many reforms which took place under the policy of liberalization. For example, tax reforms or industrial reforms, industry, that is licensing reforms. Now, today we are going to trade and investment policy reforms. The trade policy reforms aimed at dismantling of quantitative restrictions on imports and exports. Yeah, this is how imports were curtailed. Means tendency of our government during 1950 to 1990 was to restrict the import from the outside to conserve the foreign exchange. And the tools that were used that time was the quotas and tariffs. So quantitative restrictions, which is also known as quotas on imports and exports, were removed. Second one is reduction of tariff rates. You know that tariffs were imposed. It is a type of tax which is imposed on the imports of the goods and services. So these tariff rates were removed. Now, third one is removal of licensing procedures for imports. Okay. Now, for imports and exports, actually license was also needed. So, third policy, the third changes which took place by the government was the removal of licensing for the imports. Means definitely actually economy was going to be liberalized. Means it was not going to be closed, and therefore these policies of restrictions were to be removed, and therefore that took place. Import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. और import licensing को जो ख़त्म किया गया वो सभी गुड्स एंड सर्विस में ख़त्म किया गया, एक्सेप्ट आपको जो कुछ जो है लिस्ट में था, जैसे hazardous and environmentally sensitive industries था, जो या तो इन्वायरमेंट को नुकसानदेह जो है कर सकता था ऐसा गुड्स, या फिर जो खतरनाक हो, एक्सप्लोसिव्स हो, जैसे एटॉमिक एनर्जी, ये सब हो गया. इसके लिए जो है परमिशन की जरूरत थी, लाइसेंस की जरूरत थी. एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसको भी ख़त्म किया गया, जिससे कि जो है कंपटीशन जो है बाहर में, इंडियन गुड्स का बाहर में जो है इसका डिमांड जो है बढ़ सके, या फिर ये जो है कम्पीट कर सके. ठीक है, तो पहले मोटिव था इसको प्रोटेक्ट करना, बाहरी कंपटीशन से बचाना, लेकिन अब जो है इसको ओपन कर दिया गया कि बाहर से आप जो है इसको फेस कीजिए. Now we discuss all things about the liberalization and changes which took place under it. Now next one is privatization. So now we are going to discuss the privatization. It means ceding of the ownership or management of government on enterprise. इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज है उसका ऑनरशिप या फिर मैनेजमेंट को कम करना, इसको जो है प्राइवेट को दे देना. ऑनरशिप और मैनेजमेंट को जो है प्राइवेट को ट्रांसफ़र कर देना. किस इंडस्ट्रीज का? तो गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. ना जो गवर्नमेंट कंपनीज जो इंडस्ट्रीज है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करने का दो तरीका है. जो तरीका जो है आपको गवर्नमेंट अपनाया वो पहला है बाय विथड्रॉयल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उसका ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट को विथड्रॉ करना, अपने आप को जो वहाँ से पीछे कर लेना और उसके जगह पे जो है प्राइवेट को दे देना. मतलब मैनेज करने के लिए या फिर ऑनरशिप के लिए जो है प्राइवेट को दे देना. सेकेंड है बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, या दूसरा हो कि डायरेक्ट उसका सेल कर देना. तो एक ऑनर मैनेजमेंट में केस में क्या होता है कि आप ही का जो है पब्लिक सेक्टर का ही कंपनी है, गवर्नमेंट का ही कंपनी है, लेकिन उसको जो मैनेज करने के लिए जो है प्राइवेट को दे दिया गया. लेकिन यहाँ पे क्या कंप्लीट सेल है. ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेल कर देना. प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसईज टू द पब्लिक इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट. ना डिसइन्वेस्टमेंट एक वर्ड है, इसको याद रखना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ठीक है, मतलब शेयर ऑफ, सेलिंग का यहाँ सिंपल आप इक्विटी में
आप मान सकते हैं कि शेयर जो है उसको पब्लिक को जो है दे देना, पब्लिक को बेच देना, ठीक है। यानी कि पब्लिक का जो है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसका जो है शेयर को बढ़ाना पब्लिक सेक्टर में, इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का उसका अपोजिट होता है, मीन्स वहाँ से जो है पीछे हट रहा है, बेच रहा है। द पर्पस ऑफ द सेल according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of the PS. Now ऐसा thought था कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ है उसका जो मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, वो जो है उसका इफेक्टिवली यूज हो सकता है फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। तो ना केवल जो है बेचने की बात किया गया बल्कि इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस था, उसका जो इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सोचा कि प्राइवेट सेक्टर को जो है मैनेज करने के लिए दे दिया जाए, उसका ऑनरशिप को बढ़ा दिया जाए। द गवर्नमेंट एनविसेज दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI। और ये भी सोचा कि यदि प्राइवेटाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे, यदि प्राइवेट सेक्टर को जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मींस ना केवल इंडियन इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करेगा बल्कि बाहर का जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्वेस्ट करेगा। इसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसका जो है शेयर नहीं रहेगा बल्कि वो खुद जो है यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करेगा, खुद यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेगा एंड गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा। The government has also made attempts to improve the efficiencies of the PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions। और गवर्नमेंट जो है ना केवल सेल किया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, बल्कि बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज है उसको जो है ऑटोनॉमी दे दिया। उसको ऑटोनॉमी दे दिया मतलब बहुत सारे डिसीजंस जो है अब जो है उस इंडस्ट्रीज़ पे जो छोड़ दिया गया, यानी कि वो मैनेज कर सकता है खुद से, हर एक चीज़ के लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपको ये ऑटोनॉमी जो दिया गया मैनेजरियल डिसीजंस के लिए ये बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट जो है साबित हुआ, क्योंकि 1990 के बाद पॉलिसीज चेंज होने के बाद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो जो है आपको प्रॉफिट देना चालू हो गया। 1970 और 1980 के आसपास में जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज था उसका बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है लॉस में जा रहा था। लेकिन 1990s के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, कंपटीशन बढ़ा, ऑटोनॉमी को बढ़ाया गया, बहुत सारा जो है फ्रीडम दिया गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को उसका जो डिसीजन लेने के लिए। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट जो है बढ़ गया, प्रॉफिट जो है देना चालू कर दिया। फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव गिवन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। नौ बहुत सारे जो PSUs है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसको जो स्पेशल स्टेटस दिया गया। एग्जाम्पल जैसे महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया एंड मिनी रत्नास हो गया। ये सब जो है ये टाइटल जो है ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, यूनिट्स को दिया गया अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। जो सबसे जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको महारत्नास का दिया गया स्टेटस, उससे जो नीचे है उसको नवरत्नास का दिया गया और जो सबसे नीचे उसको मिनी रत्नास का दिया गया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया जितना भी इंटरप्राइजेज को, जो पब्लिक से जो सरकारी है वो जो है प्रॉफिट दे रहा है, वो लॉस में नहीं है। ये सब इंटरप्राइजेज जो है प्रॉफिट दे रहा है गवर्नमेंट को, ना कि लॉस में है, ठीक है। तो इसको बेचने की ज़रूरत जो है नहीं है, इसको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस है, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसा था, गवर्नमेंट का ऐसा फर्म्स था, ऐसा यूनिट्स था जो प्रॉफिट दे रहा था, फिर भी गवर्नमेंट उसको जो है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेच दिया। तो अभी भी बहुत सारे जो है यहाँ पे एम्बिग्विटीज़ है, पॉलिसीज़ जो है क्लियर नहीं है। तो हम लोग इस डिबेट में नहीं फंसेंगे। हम लोग का जो मेन जो मोटिव है उस डिबेट में, कॉन्ट्राडिक्शंस में, हम लोग को पॉलिसीज चेंजेज में हम लोग को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर, उसमें नहीं फंसना है कि कैसा जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम लोग को ये देखना है बस कि क्या पॉलिसी चेंज हुआ और उसका क्या जो है रिजल्ट आया। तो देखिए हम लोग की जो स्पेशल स्टेटस दिया गया वो आपको होता महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास।
फॉलोइंग CPSS हैव बीन आइडेंटिफाइड महारत्ना। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ये सब आपको महारत्ना से, ये सभी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, इसको एक दो को याद रखेंगे। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपको CBSE का इकोनॉमिक्स पेपर में, इसमें एक क्वेश्चन दिया था कि आप 2 एग्जाम्पल्स बताइए महारत्नास कंपनीज़ का। तो महारत्नास कंपनीज़ का 1-2 आपको नाम याद रखना है, और आपको जो है बस एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन सा कंपनी है। जैसे एक आप कोल इंडिया लिमिटेड, इसको आप हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे हम पढ़ रहे हैं, ये सब कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में आता है, CIL जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी महारत्नास के अंदर में आता है, और ये हम लोग को याद ही रहेगा, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। उसी से गेल आपको है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो ये सब आप जो है ONGC है, ये सबको आप जो है एक बार देख लेंगे, और एटलीस्ट 1 या 2 आप याद रखेंगे। नौ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ महारत्नास स्टेटस। ना यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि महारत्नास स्टेटस किसको दिया जाता है। तो ये इतना डिटेल्स में आप लोग को नहीं पढ़ना है ये सब कि महारत्नास का क्या एलिजिबिलिटी है, तो लेकिन आपको बस एक बार इसको देख लीजिए कि वो ये जो कंपनीज है वो प्रॉफिट देता है, और प्रॉफिट देने वाले जो कंपनी जो हाईएस्ट जो दे रहा है, जो टॉप लेवल पे, उसको हम लोग महारत्ना का स्टेटस देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 20,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ये टर्नओवर की बात हो रही है। एंड द एवरेज एनुअल नेट वर्थ, ठीक है, कितना है, 10,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट कितना है, एनुअल नेट प्रॉफिट कितना है, मोर देन 2,500 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। ग्लोबल प्रेजेंस, तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं महारत्नास का, तो इसको ज़्यादा आपको देखना नहीं है, बस एक बार 1 लुक इसको आप देख लीजिए। नहीं, ये नवरत्नास है, ठीक है, इसका भी आपको जो है यहाँ पे दिया है कि द कंपनी मस्ट हैव द स्टेटस ऑफ मिनी रत्नास, ये शुड हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड्स एंड डायरेक्टर्स, द कंपनी मस्ट ऑप्टेन द स्कोर ऑफ 60 और अबव ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज। तो ये सब जो नवरत्नास का है, जो कि महारत्नास के बाद आता है, बीच में आता है, सेकेंड लेवल पे आता है। नेक्स्ट, देयर आर 16 नवरत्नास CPSEs एज फॉलोइंग। 16 नवरत्नास है, ठीक है, इसमें से आपको कुछ को आप याद रखेंगे ताकि एग्जाम में ना पूछ दे, क्योंकि इस बार एग्जाम में आया है, तो आप कुछ को जो है कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे याद रखें। तो नवरत्नास का एग्जाम्पल देख, जैसे भेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, उसके बाद जो आप देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL हो गया, MTNL हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आप जो है याद रखेंगे, सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कम 2 जो है ज़रूर याद रखिएगा, और जो है इसको आप एक बार देख लीजिए, एक नज़र आप इस पर जो है डाल लीजिए। क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्नास स्टेटस। अब जो मिनी रत्न जो सबसे नीचे आता है उसका क्या ये है, द CPSEs विच हैव मेड प्रॉफिट्स इन द लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्नास स्टेटस। तो मिनी रत्ना जो सबसे नीचे में आता है उसका क्या कंडीशन, विच हैव मेड प्रॉफिट्स, ये लॉस में नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट्स दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है उससे मतलब नहीं, ये प्रॉफिट्स दे रहा है कंटिन्यूसली 3 साल से, और इसका जो पॉजिटिव नेट, इसका नेट वर्थ जो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, इसका टोटल वर्थ जो है, नेट वर्थ जो है डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, तो ये जो है ये होना चाहिए, तो उसको हम लोग मिनी रत्नास का स्टेटस जो है देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मिनी रत्नास है, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको हम लोग BSNL बोलते हैं, ये एग्जांपल मिनी रत्नास का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसको IRCTC बोलते हैं, ठीक है, IRCTC, इससे आप लोग जो है आप इसको यूज़ करते होंगे, इससे रेलवे टिकट को बुक करने में यूज होता है इसका। ये BSNL है, आप जानते हैं आप सभी। तो ये सब क्या है, मिनी रत्नास है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड विल डिस्कस मोर ऑन दिस इन नेक्स्ट क्लास.